Good morning, everyone. Thank you again for joining us today for our fourth masterclass session being conducted live through the video conferencing mode. Our endeavor here at the ITAT Bar is to enable our members and professional colleagues in tackling the core issues that one faces as part of this profession. This learning platform has been developed to create an interactive environment, as especially the current times call for being connected with your profession and the professional colleagues, even though we do it virtually. Our speaker today, CA Shri T.N. Singlaji, founder partner of Messrs. Kansangana and Associates, is a leading CA firm in India. Mr. Singla is a 1981 batch chartered accountant with close to 40 years of professional experience and currently serves as the president of the Chandigarh ITAT Bar Association. Mr. Singla has previously served as a member of the Chandigarh VAT Tribunal, as a board member of the State Bank of India, Haryana Power Corporation, Chandigarh Housing Board, and as chairman of the Chandigarh branch of the ICAI and a member of the Direct Tax Committee of ICAI. Mr. Singla has been, no doubt, a shining star and a pioneer in the region with a leading direct taxes practice. I'm certain that many members on this call have been associated with Mr. Singla either as a student, article trainee, CA associate, or professional colleague. And it is my humble belief that all lives that have been touched by his wisdom have greatly benefited from the same. Today, Mr. Singla will be deliberating on one of the most litigated issue of Income Tax Act, reassessment proceedings. And without any further ado, I request our speaker, Shri T.N. Singlaji, to kindly start with the substantive deliberations for the day. Over to you, sir. Hello. Nikhilji, are you listening me? Yes, sir. We can hear you. Thank you very much, Nikhilji. Good afternoon to every participant, my colleagues, and everybody. As we all know that presently the assessments under section 143.3, 143.1 ordinary assessments are completed very less, and the main tool with the department is section 147 or 148. So this is the main assessment procedure at present followed by the department, and I am deliberating today on basically section 147 to 151. The Honorable Supreme Court in the case of Parshum Pottery has held that we have to bear in mind that policy of law is that there must be point of finality in all legal proceedings. That stayed issue should not be reactivated beyond a particular stage, and that lapse of time must induce repose in and set at rest judicial and quasi-judicial controversies as it must in other sphere of human activity. So keeping in this mind, the department has given the power to the officer, but at the same time put certain obligations and restrictions on the power of the assessing officer. Today we will discuss all such things in the section 148.7 to 151. Now I am starting with section 147. If the assessing officer has a reason to believe, dear friends, this is very important point, reason to believe. Nikhilji, are you listening? Yes, sir, we can listen. I will come to later on this reason to believe, because this is the main clause in the section which is to be dealt very carefully by us when we participate in the assessment or proceedings. Reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year, then he may, subject to the provisions of section 148 to 153, assess or reassess such income, and also any other income chargeable to tax. Here I want to clarify that
and word is used if the reasons recorded by the assessing officer as reason to believe any addition is made on those reasons, then the other additions can be made by the assessing officer. But incidentally, Punjab Haryana High Court and Karnataka High Court are against us, but few courts are in favor. And this issue is to be still decided by the apex court. And until it attains the finality in our region, it is prevalent as per the judgment of Punjab and Haryana High Court, jurisdictional High Court, that even if no addition is made on the reasons recorded, then also any other addition can be made. And this has not been accepted by the Punjab Haryana High Court. They have different view. And which comes to his notice subsequently. There is no doubt, if the case is reopened, once reopened, then any other addition can be made once the reason to believe is recorded properly and there is no dispute about that. Now, this section is applicable on any assessment made or reassessment made. So word is, an assessment has been made. So assessment हुई हो चाहे ना हुई हो, किसी भी केस में this one section 147/140 can be applied. Now, there is then certain requirements to be followed by the department. One is, first, reason to believe is to be recorded. Then approval from the commissioner or joint commissioner is to be taken. Then notice is to be issued. Now, there is then restriction within 6 years from the completion of assessment year, the notice for reassessment can be issued. Assessment or reassessment can be issued by the land assessing officer. And if the period is more than 4 years, then certain restrictions are there. Similarly, in the case of foreign assets, the limit is increased to 16 years. So this I would come to later on. First, I come to the notice part. It is mandatory that notice is to be issued. If there is proof that notice was issued before the due date, then it is valid notice. This has been already discussed by Sehgal Saab, deliberated on this in his last deliberation. So now coming to this, but it should be at the proper address and in the proper name. So there is, earlier one judgment was there that if the company is amalgamated with another company, then the notice issued in the amalgamating company is invalid. But now another judgment is there by the apex court that if the company is, if the firm is converted or company is converted into LLP and the notice is issued in the name of old company, then it is technical error can be corrected. So these are the facts to be seen, how it can be taken care of in the period to come. But the company which is not existing, amalgamated in the name, if in the name of that company any notice is issued, then definitely we can contest that. Second is proper address. If the address is not correct, then also it is invalid. Name and address are two proper things which are to be seen, that whether the notice issued was on proper address or name. Thirdly, in the NDTV judgment of the apex court, the department tried to say that they argued that we want to go into the second proviso to section 147
so that they wanted to go to second proviso to section 147, but the Honorable Apex Court has said that since you have not mentioned the proviso in the section, with the section in the notice itself that it is under section 147 proviso 2, so it is not allowed now to you go for this at this stage. And if the earlier your notice is invalid, if you want to proceed and if the law permits you go with it, we will not comment on that. So Supreme Court ने उसे कह दिया कि आपको proviso अगर नहीं लिखी 147 के साथ, तो उस proviso को आप बाद में opt करते हो तो बड़ा मुश्किल है. So this will create so many difficulties, because normally the assessing officer is not mentioning any proviso with the in the notice that under which proviso of section 147 they are issuing the notice. So they simply write 147. So dear friend, this is to be taken care of by us. Now this is the notice part. Now I come to the assessments which can be reopened or reopened for the assessment or reassessment. So there are certain circumstances in which if we have not filed the return, if we have not filed the return in response to 139 or 142(1) or section 148, or to disclose fully and truly all facts necessary for his assessment, for that assessment year. So my dear friends, yahan word is material facts. So material facts is very important. Kindly note, I come to that when I come to the reason to believe. Now, another point in, if any issue is pending, any matter is pending in the appeal, reference or revision, और वो चार्जेबल टू टैक्स है और वो एस्केप हुई है, तो उसको रीओपन नहीं कर सकते 148 में. इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल कम टू द एनडीटीवी. प्रोडक्शन बिफोर द assessing officer of account books or other evidence from which material evidence could with due diligence have been discovered by the assessing officer will not necessarily amount to disclosure. The department says, the act says that अगर आपने कोई बुक्स और एविडेंस दे दी है जिसमें आप कहते हो कि विद द डिलीजेंस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर वो उसको डिस्कवर कर सकता था, वो हम उसको इंफॉर्मेशन नहीं मानते. लेकिन इस पे मैं आगे आऊंगा, इसमें बहुत सी जजमेंट है. सो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, वेयर एंड सी क्लॉज पे मैं आ रहा हूं सीधा 147 में. वेयर एन असेसमेंट हैज बीन मेड बट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज बीन अंडर असेस्ड. इसको मैं आई वुड लाइक टू लिंक विद सेक्शन 150, wherein it is required that 149 and 150 that at least AO should quantify the income escaped. At least अगर 4 साल से ऊपर हो गए हैं तो उसको क्वांटिफाई करना जरूरी है कि 1 लाख से ज्यादा इनकम एस्केप हुई है. इसमें आई विल कम टू द सेकंड सबसेक्शन ऑफ क्लॉज सी. सच इनकम हैज बीन असेस्ड एट टू लो रेट. 149B सेज कि 1 लाख से ज्यादा इनकम एस्केप होनी चाहिए अगर आपके 4 साल से ज्यादा हो गए हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. नाउ ही सेज सच इनकम हैज बीन असेस्ड एट टू लो रेट, TOO. अब टू लो रेट का क्या मतलब है? सेकेंडली, अगर लो रेट पे असेस हुई है तो ये गलती असेसिंग ऑफिसर की है, असेसी की तो गलती है नहीं. थर्डली, अगर टू लो रेट पे हुई है तो 4 साल के बाद तो ये रीओपन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकम एस्केपमेंट तो लाख से ज्यादा कैसे डिटरमिन करेगा ये. दिस इज
सहगल साहब इसमें बाद में बता सकते हैं मेरा ओपिनियन ठीक है कि नहीं ठीक है, बट दिस इज माय ओपिनियन कि इसमें 4 साल के बाद अगर टू लो रेट है तो खोलना बड़ा मुश्किल है एओ के लिए। नाउ कमिंग टू दिस, अभी कलेक्ट करके एओ को दे सकता है, किसी भी पॉइंट पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे सकता है और वो उसको इंफॉर्मेशन कंसीडर वो कर सकता है। ये नाउ उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 इसमें डाल दी है उसी पॉइंट पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड सच इशू कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, यहां मैं आपको बता ही चुका हूं। सो नाउ आई विल कम टू स्टेट वे टू द रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे असेसमेंट 143(1) में हुई हो, चाहे 143(3) में हुई हो, चाहे कोई भी असेसमेंट हुई हो, रीजन टू बिलीव इज मस्ट। इवन राजेश जावेरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चेंज ऑफ ओपिनियन तो हम नहीं मानते बिकॉज अर्लियर असेसमेंट वाज नॉट देयर, बट रीजन टू बिलीव तो चाहिए। ईओ को अगर रीओपन करनी है कोई भी असेसमेंट तो उसको रीजन टू बिलीव तो चाहिए। नाउ रीजन टू बिलीव, the belief must be held in good faith. It cannot be merely a pretense. Now इस पे जो वेरियस जजमेंट आई हैं उसमें बेसिकली जो कंक्लूजन है, इट इज मेड ऑफ 2 words, रीजन एंड टू बिलीव। द रीजन मीन्स कॉज और जस्टिफिकेशन एंड द वर्ड बिलीव मीन्स टू एक्सेप्ट एज ट्रू or to have faith in it. Before the officer has faith or accept a fact to exist, there must be a justification for it. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये ट्रू है और उसमें फेथ भी होना चाहिए। सो नाउ देयर आर जजमेंट्स, अलग बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है गंगा प्रसाद महेश्वरी की, जिसमें उन्होंने कहा है बिलीव में बी सब्जेक्टिव बट रीजन इज ऑब्जेक्टिव। वो द एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव अकरिंग इन सेक्शन 147 डज नॉट मीन्स ए प्योरली सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द आईटी। द रीजन फॉर द बिलीव मस्ट हैव ए रैशनल कनेक्शन और रेलेवेंट बेयरिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द बिलीफ। सुप्रीम कोर्ट है नवाब मीर बरकत अली खान। So, the basic brief में इसको अगर हम ले तो ये है कि evidence in possession of assessing officer that the assessee has understated his income. This is the first ground for the belief. Second is evidence in possession of assessing officer that the assessee has claimed एक्सेसिव लॉस डिडक्शन अलाउंस और लीव, और वो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पोजेशन में होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ एविडेंस होनी चाहिए। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजिबल मटेरियल इज नेसेसरी, टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए। रीजन टू बिलीव इज मोर देन इज सेटिस्फाइड। Reason to believe is very important. Reason to believe does not mean reason to suspect. Then reason must be in good faith, must have rational connection with the relevant grounds. Belief must not be based on suspicion, gossip or rumors. Then उन्होंने कहा belief must be that of assessing officer, not of any third person, not on our borrowed satisfaction. Then change of opinion in the mind of assessing officer or interpretation of law or in fact on facts cannot be basis for forming reason to believe. So expression reason to believe is very strong and important condition. It is not mere satisfaction. So
रीजन टू बिलीव मस्ट में इसमें बहुत सी उन्होंने जजमेंट्स पहले आई हैं कि रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए। सपोज नॉर्मली आजकल क्या होता है कि सर्च होती है किसी ए पार्टी के, वहां बी पार्टी के डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और उस पार्टी की इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसमें ज्यादातर होता है जिन्होंने बोगस एंट्रियां ली है, एंट्री ऑपरेटर है, परचेज बोगस है, सेल बोगस है, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कोई ना कोई उनको वहां डॉक्यूमेंट्स में से मिल जाती है। नाउ उस बेस पे 148 वो इशू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस पे मैं आपको 153C की एक प्रोविजन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 153C(1)(b) में लिखा है, पहले तो स्टार्ट 153C(1) होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 139, 147, 148, 149, 151 and 153. So, notwithstanding anything contained. Now coming to that, where the assessing officer is satisfied that any books of accounts or documents seized or requisitioned pertains or pertain to, or any information contained therein, this is very important, or any information contained therein relates to a person other than the person referred to in section 153. So जिसके सर्च हुई है उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन का उनको कोई भी सीजर हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ, कोई इंफॉर्मेशन मिल गई जो उसमें है, और वो उसने पास कर दी ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को, तो नॉर्मली डिपार्टमेंट क्या करता है, उसमें 148 इशू करता है। बट मेरे ओपिनियन में वंस इट इज नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन सो एंड सो, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिख दिया है, सो इसमें 153C होना चाहिए। दिस इज आने वाले टाइम में, इसमें ट्रिब्यूनल की 2 जजमेंट्स आई हैं, मैं देख रहा था, बट आने वाले टाइम में इसमें जरूरी तौर पे लिटिगेशन होने वाली है कि 148 होना चाहिए था कि 153C होना चाहिए, बिकॉज दिस इज, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो उसमें कंटेंट है, नॉर्मली पहले तो था डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन अब इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन विंग से यही आती है कि एक रेड हुई जी, ये इंफॉर्मेशन मिली, दीज आर बोगस एंट्रीज, बोगस परचेज, ये वो, एंड ऑन दैट वेरी बेसिस ये जो है नॉर्मली 148 होते आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 153C होना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन है कि 153C होना चाहिए, 148 नहीं होना चाहिए। नाउ रीजन टू बिलीव में 4-5 चीजें आती हैं। सपोज मैंने रिटर्न नहीं भरी, AIR की इंफॉर्मेशन आ गई कि असेसर ने कैश डिपॉजिट कराया हुआ है, या कहीं और से इंफॉर्मेशन आ गई कि कैश डिपॉजिट कराया हुआ है। नॉर्मली ये क्या करता है, लिख देता है जी उसने रिटर्न नहीं भरी, कैश डिपॉजिट कराया है, आई हैव रीजन टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। नहीं, उसमें कोर्ट ने कहा है कि आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि क्यों आप इस रीजन टू बिलीव पे पहुंचे हैं कि उसका जो इनकम है वो एस्केप हुई है, उसने कैश जमा कराया, कोई अगर कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा जी इसकी 5 लाख रुपया, 10 लाख इसने इस अकाउंट में कैश जमा कराया है, और उस अकाउंट के अगेंस्ट जो कैश जमा कराया इसने कोई रिटर्न नहीं भरी, और इसकी बिलो टैक्सेबल इनकम इतनी होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा की इसकी इनकम है, तो आई सपोज के ये इनकम इसकी, तो रीजन लिखना हर जगह जरूरी है। कोई इंफॉर्मेशन आ गई, प्रॉपर्टी परचेज करी है, कोई और इंफॉर्मेशन आ गई, तो उसके लिए रीजन लिखना, रीजन टू बिलीव, ये नहीं उसके माइंड में था, उसको रीजन टू बिलीव में लिखना जरूरी है बिफोर ही टेक्स द अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर। नाउ द रीजन टू बिलीव पे अगर हम आते हैं तो देयर कैन नॉट बी चेंज ऑफ ओपिनियन। सबसे पहले ये है, कोई चेंज ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता। अगर मैंने ऑलरेडी ड्यूरिंग द असेसमेंट, ओरिजिनल असेसमेंट जो मेरी थी,
उसमें अगर मैंने सारे पेपर दे दिए जो मुझे चाहिए थे, एनडीटीवी ने बड़ा ही क्लियर इसमें कह दिया है, बड़ी ही अपेक्स कोर्ट की बहुत ही बढ़िया जजमेंट आई है एनडीटीवी की, जिसमें मैं आपको कुछ पार्ट शेयर करके आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं कि असेसी ने अगर प्राइमरी फैक्ट्स आपको बता दिए हैं और उसमें अगर एओ ने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं करी टू वेरीफाई दोज फैक्ट्स, जो कि वो वेरीफाई कर सकता था, और बाद में आप कहो कि जी मैं तो, इन्होंने मुझे मटेरियल नहीं दिए, नहीं डिस्क्लोज करे, वो नहीं चलेगा। वो कहते उन्होंने बल्कि इसमें माना है एनडीटीवी में कि रीजन टू बिलीव तो उसके पास थे, लेकिन उसने नॉन डिस्क्लोजर जो था ट्रू एंड फेयर का, उस पर उन्होंने डाउट करके ये कहा है कि आप इसको चेंज ऑफ ओपिनियन पे नहीं ले सकते, या आप ये नहीं कह सकते नॉन डिस्क्लोजर था। अब इसमें मेनली एनडीटीवी में नॉन डिस्क्लोजर पे है कि नॉर्मली कहते हैं जी उसने डिस्क्लोज नहीं करी इंफॉर्मेशन। वो कहता अगर मैंने प्राइमरी फैक्ट्स दे दिए, मैंने इसमें बोगस एंट्रीज ली थी और कंप्लेनेंट थे वो जिन्होंने एंट्रियां दी थी, और सारा कुछ वो प्रूव हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा जब उन्होंने आपको सारी डिटेल दे दी थी, सब्सिडरी की डिटेल दे दी थी, उनकी सारी जो एंट्रियां थी कैसे आई कैसे सारी दे दी थी, तो एओ कुड हैव इजीली एग्जामिन्ड इट। अगर एओ ने नहीं करा तो आज आप कहते हो कि असेसी ने ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं करा, तो ये नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। सो इसी तरीके उषा इंटरनेशनल एक बहुत अच्छी जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने चेंज ऑफ ओपिनियन में डेलिब्रेट करा था बड़ा डिटेल में। सो वो कहते अगर मैंने असेसिंग अफसर ने कोई क्वेश्चन ड्यूरिंग द असेसमेंट पूछ लिया है, चाहे उसको असेसमेंट ऑर्डर में डिस्कस किया या नहीं किया, अगर उसने असेसमेंट ओरिजिनल असेसमेंट में वो सवाल मेरे से पूछा था और मैंने उसको प्रॉपरली रिप्लाई कर दिया था, तो उसके बाद अगर एओ कहे कि जी वो ऑर्डर में नहीं लिखा, तो इट इज डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड मानी जाती है कि एओ ने मेरे जो पेपर थे वो कंसीडर करके विद प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड असेसमेंट कंप्लीट करी है। आज उसको वो ये नहीं कह सकता कि एओ ने ऑर्डर में नहीं लिखा इसलिए मैं इसको नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड मान रहा हूं जी, या डिस्क्लोज प्रॉपर नहीं मान रहा हूं। तो दिस इज चेंज ऑफ ओपिनियन। ये कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया में भी उन्होंने कहा है, उषा इंटरनेशनल अपेक्स कोर्ट ने कह दिया है, उषा इंटरनेशनल ने कहा है। उषा इंटरनेशनल में एक और बढ़िया बात उन्होंने करी है कि उन्होंने ये कह दिया कि Section 147 give arbitrary power to the assessing officer to reopen assessments on the basis of mere change of opinion, which cannot be per se reason to reopen. We must also keep in mind the conceptual difference between power to review and power to reassess. The assessing officer has no power to review. So, as in the gap of reopening the assessment, review would take place. So उन्होंने कहा कि आप रीअसेसमेंट के गार में रिव्यू नहीं कर सकते, टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस रीजन टू बिलीव, इंफॉर्मेशन आई कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने कहा जी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये ए पार्टी ने आपको एंट्रियां दी हैं, इस डेट को दी है, ये ऐसे ऐसे दिया है। अब नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू अप्लाई हिज माइंड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। क्या मैंने उनको, वो मेरे बैंक में उसने देखा, अगर 143(3) की असेसमेंट है कि उन्होंने मेरे बैंक में देखा कि वो वाकई मुझे एंट्रियां आई हैं, मैंने किस हेड में ली हैं, क्या हुआ, वो सारा कुछ उसको रीजन टू बिलीव में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रीजन टू बिलीव एक बार बाद में रिकॉर्ड कर लिए, बाद में उसको सप्लीमेंट करता रहे या चेंज करना रहे। इट इज नॉट परमिटेड। रीजन टू बिलीव जो लिख दिए हैं उस पे प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज नेसेसरी।
थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में बहुत सी जजमेंट आ गई, मीनाक्षी ओवरसी, G&G फार्मा के थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे नहीं चलेगा, कितनी भी इंफॉर्मेशन हो। AO हैज टू अप्लाई हिज माइंड ऑन दोज इंफॉर्मेशंस, जो भी है, इंफॉर्मेशन एक हो दो हो। सेकेंडली, अगर आपकी इंफॉर्मेशन फैक्चुअली इनकरेक्ट, आपने जो इंफॉर्मेशन आई जिसपे आपने रिलाई किया फैक्चुअली इनकरेक्ट है, लाइक आप लिख देते हो कि जी रिटर्न नहीं भरी, अब एओ ने लिख दिया कि रिटर्न नहीं भरी जी रीजन टू बिलीव में, और हम कहते हैं जी हमने तो रिटर्न भरी है, सो दैट वो रीजन टू बिलीव वुड नॉट स्टैंड, बिकॉज गुजरात हाई कोर्ट ने ये कह दिया है बड़ा क्लियरली कि रॉन्ग फैक्ट्स और रॉन्ग इंफॉर्मेशन ने कहां तक आपका माइंड जो है विशिएट करा जब आप ये डिसीजन ले रहे थे, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज ये मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूं जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है। When the officer concerned has taken into consideration an irrelevant fact, it cannot be said with certainty at which factor would have weighed with him for the purpose of arriving at the belief that the income chargeable to tax has escaped assessment and to what extent the decision is vitiated. So वो कहते हैं अगर आपने कोई फैक्ट गलत किया है जिसपे आप रिलाई करके चल रहे हो, तो अगर वो फैक्ट गलत है तो ये आपका रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। एक रीजन टू बिलीव में वो कई बार लिख देते हैं जी कि असेसी ने ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं करा, और हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो देख नहीं पाया, ही कुड नॉट वेरीफाई द डिटेल्स। ऐसा नहीं चलेगा, वेग इंफॉर्मेशन वेग रीजन टू बिलीव नहीं चलेंगे। अगर एओ की गलती है तो भाई साहब 263 है आपके पास, एओ की गलती पे 148 नहीं कर सकते। एओ की कोई भी गलती है, यू कैन नॉट रेक्टिफाई बाय गोइंग टू द बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ 148। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है। ऐसे ही ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया। ऑडिट ऑब्जेक्शन इज नो ग्राउंड फॉर द रीजन टू बिलीव, क्योंकि वो एक ओपिनियन है उसका, और एओ अपना जो किया हुआ काम है, जो एओ ने असेसमेंट की है, उस पे ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। दैट मीन्स दैट इज मिस्टेक ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, नॉट ऑफ द असेसी। सो उस पे नहीं। हाँ, एक है कि अगर एओ के पास कोई इलीगल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, कहीं भी इलीगली कहीं से आ जाती है, सपोज सर्च इनवैलिड होगी, कोई और इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो रेलेवेंट है, और वो उस पर अपना ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके उसको रीओपन करता है, तो भाई साहब वो प्रॉपर रीजन ऑफ बिलीव माना जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास इंफॉर्मेशन इलीगली आई थी या कहां से आई थी। सिमिलरली इसमें जब रीजन टू बिलीव लिखते हैं तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि एओ उस पर डेट ही नहीं डालता। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है एओ का, डेट ना डालना, किस डेट को तुमने रीजन रिकॉर्ड करे, तेरे पास कब इंफॉर्मेशन आई। सेकेंडली जो इंफॉर्मेशन आती है उसका क्रक्स डिस्कस करके उसके बाद एओ को रीजन टू बिलीव में ये लिखना जरूरी है कि मैंने वो इंफॉर्मेशन को देखा विद द रिकॉर्ड अवेलेबल, या जो भी उसके पास रिटर्न है या व्हाट एवर इट इज, और उसमें ये फैक्ट मैंने देखे। अब एओ को यही नहीं पता होता कि शेयर कैपिटल आई है, प्रीमियम आया है, मेरे पास लोन आया है, एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आया है, इंफॉर्मेशन आई जी, क्रेडिट बोगस एंट्री आई है, उसने लिख के रीजन टू बिलीव और रीओपन कर दिया। नो, उसको देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में मैंने क्या दिखाया है, उसको रीजन टू बिलीव में लिखना पड़ेगा कि ये। सेकेंडली एओ के पास इंफॉर्मेशन आती है कि एक आदमी कहता है जी मैं एंट्री प्रोवाइडर हूं, मैं एंट्रियां देता हूं, मैंने ए कंपनी को एंट्रियां दी है। भाई साहब उसको आप बाद में नोटिस इशू करो, 133(6) करो, 131 करो, उससे पूछो कि तूने पैसे लेके दी है, तूने कैसे ये एंट्रियां दी है, किसके थ्रू दी है, कोई ना कोई आपस में
कोई लाइव लिंक और नेक्सस तो बनाना पड़ेगा आपको रीजन टू बिलीव के लिए। ऐसे थोड़ी ना आप रीजन टू बिलीव थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे सिंपली लिख के चल पड़ोगे, ऐसा नहीं चलता। ये कोर्ट्स ने बहुत से, ये जरूर है कि नॉर्मली कोर्ट्स इसको रिट में एंटरटेन नहीं करती, क्योंकि रिट में वो कह देते हैं कि आपके पास रेमेडी है तो आप उसको रेमेडी को अवेल कर लो। लेकिन बहुत से केसेस में स्टक डाउन भी कराया उन्होंने 148 का नोटिस। बट मैं इसको ये चाहता हूं कि जब हमें रीजन टू बिलीव होने के बाद जब 148 का नोटिस आता है, इमीडिएटली आप उसकी रिटर्न भरें। रिटर्न भरते ही पहले तो हम लोग कह देते थे कि जो मैंने रिटर्न भरी है उसी को मान लिया जाए, बट मेरी सजा, अब तो खैर ई फाइलिंग होती है तो रिटर्न भरनी ही पड़ती है। जब आप रिटर्न भरते हो तो एक चीज का ध्यान रखो, अगर 143(3) की ओरिजिनल असेसमेंट में कोई आपकी एडिशन हुई है तो उसको इस रिटर्न में जरूर डिक्लेयर कर दो, जो 148 में कर रहे हो, जिसको आप पर टेस्ट नहीं कर रहे या लूज कर चुके हो, उसको आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए 148 की रिटर्न में। और इमीडिएटली देयर आफ्टर यू आस्क फॉर द कॉपी ऑफ द रीजंस रिकॉर्डेड एंड कॉपी ऑफ द अप्रूवल ऑब्टेन्ड। रीजंस रिकॉर्डेड की जो आपने कॉपी मांगी है, कॉपी मांगते ही उसके बाद व्हेन यू फाइल द ऑब्जेक्शन, तो असेसिंग ऑफिसर को वो ऑब्जेक्शन डील करने जरूरी है। अर्लियर देयर आर जजमेंट्स के अगर रीजन टू बिलीव नहीं दिए या ऑब्जेक्शन आपके नहीं डील किए तो वो उसको असेसमेंट को इनवैलिड कर देते। बट रिसेंटली द कोर्ट्स आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे, वो उसको सेट असाइड कर देते हैं या दोबारा भेज देते हैं ईओ के पास कि जी आप इनके रीजन इनको दो, रीजन को ऑब्जेक्शन लो और उसको डील करके दोबारा से आप हमारे पास भेजें। सो लेकिन हमें ये ग्राउंड तो लेनी चाहिए कि मेरे रीजन नहीं दिए या रीजन मुझे जो दिए थे फाइल करा था दैट आर नॉट हेल्ड प्रॉपरली बाय द असेसिंग ऑफिसर, रिप्लाई नहीं दिया। सेकेंडली, जो रीजन टू बिलीव के अगेंस्ट मैंने ऑब्जेक्शन फाइल करे हैं, उसको जो उसके रीजन टू बिलीव है उसी बेस पे ही वो मेरे रिजेक्ट कर सकता है, कोई नए सब्सटेंस नहीं उसमें लेके। और देयर आर जजमेंट्स ऑफ वेरियस कोर्ट्स के रीजन टू बिलीव मेरे रिजेक्ट कर एटलीस्ट जहां भी उसने मेरे रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करे हैं, वो ये अखिल जी रजिस्टर वो आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज। चलो ऑफ कर दिया उसको। हाँ, वो जब मेरे रीजन टू बिलीव के ऑब्जेक्शन जब वो मेरे डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो डिस्पोज ऑफ करते हुए उसको जो रीजन टू बिलीव है उन्हीं बेसिस पे करना पड़ेगा, कोई नया सब्सटेंस उसमें लेके नहीं आ सकता। फिर उसने अगर मेरे रीजन टू बिलीव जब करे हैं रिजेक्ट या मेरे एक्सेप्ट कर लिए तो बात ही खत्म होगी। अगर मेरे रिजेक्ट करे हैं तो कोर्ट के डिसीजन है कि उसके असेसमेंट करने के लिए 4 हफ्ते का कम से कम टाइम होना जरूरी है, मतलब कि रीजनेबल टाइम चाहिए। ये नहीं कि वो असेसमेंट साथ ही तैयार करके बैठ गया। हाँ, अगर टाइम नहीं है, टाइम बारिंग है तो बात अलग है। मैं इसमें आपको पेपर प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, जजमेंट में इसलिए नहीं कोट कर रहा कि टाइम थोड़ा है, और मैं आपको सारी जजमेंट्स उसमें कोट करके सभी को भेज दूंगा, अखिल जी को जो जो रिक्वेस्ट भेज देगा। देन कमिंग टू द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, रीजन टू बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर उसमें गलती करते हैं और उसमें हमारे पास एक टूल होता है कि हम उसको कॉन्टेस्ट करके कल को अपील में भी कहीं भी हम ये कह सकें कि रीजन टू बिलीव ही नहीं था, इसने गलत करा। सेकेंडली, अगर 4 साल से ऊपर हो गए हैं और मेरी असेसमेंट 143(3) में हुई है पहली, तो असेसिंग ऑफिसर को ये लिखना बड़ा जरूरी है कि मैंने सारे मटेरियल फैक्ट्स फुल्ली एंड ट्रूली मैंने डिस्क्लोज नहीं करे थे। सो हियर माय डियर फ्रेंड, इट इज मटेरियल फैक्ट्स। सो मैंने अगर प्राइमरी फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए हैं और मटेरियल फैक्ट उसको बताना पड़ेगा कि क्या मैंने मटेरियल फैक्ट्स नहीं डिस्क्लोज करे। नॉर्मली वो एंड में लिख देते हैं कि hence the assessee has failed to disclose truly and fully material facts,
लेकिन उसको रीजन टू बिलीव में अगर वो नहीं लिखता तो इट इज ओपन टू चैलेंज, और ये स्टक डाउन होने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो रीजन टू बिलीव इज, आप ये समझिए कि जब कोई 148 होता है तो रीजन टू बिलीव ही हमारा एक मेन, समझिए एक ग्रंथ बन जाता है जिसको हम देख के अच्छी तरह से कि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट निकल सके, सो दैट वी कैन कंटेस्ट। नाउ अगर रीजन, अब नाउ इट इज अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। अगर तो 4 साल से कम है पीरियड तो या तो जॉइंट कमिश्नर असेसिंग अफसर हो या जॉइंट कमिश्नर की परमिशन चाहिए। अगर 4 साल से ज्यादा है, 6 साल है, और मेरी पहली असेसमेंट जो है 143(3) में हुई है, तो ये लिखना बड़ा जरूरी है कि जी ट्रूली एंड फुल्ली मैंने डिस्क्लोज नहीं करा, और उसमें अप्रूवल 4 साल से ऊपर के सभी केसों में अप्रूवल चाहिए कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, वट एवर इट इज, कमिश्नर की। नाउ here it is very important point, the joint commissioner or commissioner are to be satisfied, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है, commissioner is satisfied on the reason recorded by the assessing officer that it is a fit case for the issue of such notice। इसी तरीके joint commissioner, now satisfaction does not mean के yes I agree, satisfaction में होना तो ये चाहिए कि CIT को बिफोर रिकॉर्डिंग द सेटिस्फेक्शन असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए। नेचुरल जस्टिस तो ये डिमांड करता है, बट आज तक किसी कोर्ट में ये किसी ने नहीं कहा कि ऐसा करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम स्पीकिंग ऑर्डर जरूर होना चाहिए कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर का कि मैं सेटिस्फाइड हूं। ऐसा नहीं है कि वो सिंपली उसने कह दिया मैं सेटिस्फाइड हूं, या मेरी आज ही सुबह वो गई और उसने देखा ही नहीं। ये उस पे एक सेफ गार्ड रखा हुआ है एओ पे कि सीनियर ऑफिसर उसको देखे, अगर कोई गलती है तो उसको गलती को वहां पकड़े, उसको रिकॉर्ड से देखे और उसमें सेटिस्फेक्शन नोट करते हुए एक प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर बनाए। ऐसा नहीं है कि वो जो मर्जी उसको लिख के दे दे। देन मैं नॉन रेजिडेंट वाले पे नहीं जा रहा क्योंकि वो जो 16 साल वाला है वो बहुत ज्यादा मुझे रेलेवेंट नहीं लगा। आई कम टू द अदर पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये है कि इसमें उन्होंने कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने इनको रीजन टू बिलीव जो लिखते हैं उसमें नॉर्मली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी एटलस साइकिल। उन्होंने कहा अगर आपने जो फैक्ट्स लिखे हैं रीजन टू बिलीव में और वो ग्राउंड दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करती तो वो जो रीजन टू बिलीव है वो आप उसको आगे उस पर असेसमेंट करते हो तो दैट इज इनवैलिड। लेकिन इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि असेसिंग ऑफिसर को करना चाहिए कि अगर वाकई उसके कोई ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट है तो वो बजाय नहीं करने के अगर टाइम है तो उसको 148 करना चाहिए। बट इट इज अप टू द असेसिंग ऑफिसर क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने लिख दिया The income tax officer did not have the jurisdiction to proceed with the reassessment the moment he found the 2 grounds mentioned in the reassessment notice incorrect or non-existent। तो ये एटलस साइकिल की हमारे जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट की है। और एक इंपॉर्टेंट इसमें जजमेंट है फेयर इन फिनवेस्ट की है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की है, where the assessee adduces evidence in support of the share application monies. It is open to assessing officer to examine it and reject it on tenable grounds. In case he wishes to rely on the report of the investigation authority, some meaningful inquiry ought to be conducted by him to establish a link between the assessees and the alleged hawala operator. This is what I told to you कि उसको अपना application of mind दोनों को जरूरी है
जो अप्रूवल दे रहा है और जो रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड कर रहा है। देन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन दिल्ली हाई कोर्ट उसने कह दिया द said order overlooks the fact that reason for reopening mention to what fact or information was not disclosed by the petitioner. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लिख देते हैं कि ट्रूली एंड फुली आपने डिस्क्लोज नहीं करी, वो लिखना जरूरी है। दिस इज अ वेरी वाइटल एंड फैक्ट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर एंड एलिगेशन दैट द कंपनीज आर पेपर कंपनीज विदाउट फर्दर फैक्ट्स इज इट by itself insufficient to reopen assessments that stand closed after passing of order under section 120. So ऐसा नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन आ गई और आपने कहा जी ये तो हो गया जी, मेरे को इंफॉर्मेशन आई है और मैंने रीओपन कर दिया। सिमिलरली इसमें इसी में कोर्ट ने एओ के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं कि वो रीजन टू बिलीव और नोटिस कैसे करना है। वो कहता जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये यूज करते हैं फॉर टेकिंग द परमिशन और अप्रूवल जो भी है, तो उस पे ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन और डेट होनी जरूरी है। जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, नेम, डेजिग्नेशन एंड डेट होना जरूरी है। सो उस परफॉर्मा पे वो हमें कॉपी लेनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ठीक है कि नहीं है। दूसरा है उसमें लिखे कि एओ को लिखना जरूरी है कि उसको क्या इंफॉर्मेशन आई और उस पर उसने क्या इंक्वायरी करी। तीसरा है कि उसका रेफरेंस उसको प्रॉपर रीजन टू बिलीव में देना चाहिए, और असेसमेंट जब करता है, असेसमेंट के दौरान उसको वो सारी इंफॉर्मेशन जिस बेस पे उसने रिलाई करके रीजन टू बिलीव करके मेरा रीओपन करा है, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन कन्फ्रंट नहीं कराता तो वो असेसमेंट में जो भी एडिशन करेगा वो इनवैलिड हो जाएंगी। ये लास्ट में उन्होंने लिखा है द रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट इज नॉट ए मैकेनिकल रिचुअल, इट इज ए क्वासी जुडिशियल फंक्शन। द ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन शुड डील विद ईच ऑब्जेक्शन एंड गिव प्रॉपर रीजंस फॉर द कंक्लूजन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सार्थक सिक्योरिटीज एक दिल्ली हाई कोर्ट की, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है once the ingredients of section 147 are fulfilled, the AO is competent in law to initiate the proceeding under section 140. The assessee in his objection has clearly stated that the companies had bank accounts and payments were made to the assessee company through banking channels. The identity of companies was not disputed. Under these circumstances, it not be appropriate to require the assessee to go through the entire gamut of reassessment proceeding. तो कहता अगर assessee ने आपको information देती, आप verify कर लेते हो उसको। ये थोड़ी ना कि आप बाद में कहो नहीं जी ये तो हमें आपने information नहीं दी। Then ये it's not only the AO but इसको जो approving authority है उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो उसको पूरा का पूरा चेंज ऑफ ओपिनियन में बहुत अच्छी जजमेंट्स है, कैलविनेटर ऑफ इंडिया पे है। एक जजमेंट बड़ी अच्छी है जो मैं अभी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट की है, रोहिंटन फाली नारीमान एंड मिस इंदु मल्होत्रा जज की है। ये एडामाइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पे है। तो उसमें कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, इसको SLP इसकी डिसमिस करी है सुप्रीम कोर्ट ने। व्हाट इज एविडेंट इज दैट AO went by only the report received and did not make the necessary further inquiries, such as into the bank accounts or other particulars available with him, but rather received the entire findings on the report, which cannot be considered as primary material. The assessee had discharged the onus initially cast upon it by providing the basic details, which were not suitably inquired by the AO. सो अगर एओ अपनी कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो वो रीजन टू बिलीव में वो उसको लेके दोबारा से रीअसेस का प्रोसेस नहीं अडॉप्ट कर सकता। सो विद दिस आई थिंक टाइम इज ओवर। मुझे मैसेज आ रहा है इनका, निखिल जी का,
तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, ये टॉपिक बहुत लंबा है बट फिर भी मैंने कोशिश करी है जितना कवर हो सका। तो निखिल जी बताइए, कोई किसी के क्वेश्चन आंसर है तो। Yes, sir. Sir, abhi we are just projecting the questions on the screen as well, and I think, sir, 148 being such a sea of a topic, I think you've done great in summarizing the core issues in a short span of time. The participants, we also request you to kindly raise your hand. There is a feature raising hand in the settings of participants, so we can recognize you after we address all the questions that were received on our online form and in the chat. So we urge you to kindly raise your hand as well. So the questions are now posted as a shared screen. I hope you can see the questions on the screen. Yes, should I give the answer or you would you will read the question? Sir, I can do that on for you. I'll just summarize briefly the questions. आप बता दीजिए, समराइज कर दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। First query, सवाल ये है, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि एओ ने 143.3 में डिसअलाउंस करा 14A में, लेटर ऑन एओ ने पैनलाइज करा कि मैंने जो कंप्यूट करा था वो मेथड प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक नहीं था, तो उसने रीओपन कर लिया टू रिकैलकुलेट द डिसअलाउंस। यही है ना जी? राइट सर। राहुल खुराना जी, यही है आपका सवाल? ठीक है। इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि 14A की जो डिसअलाउंस होती है ना, वो डीम्ड डिसअलाउंस होती है। नंबर 2, अगर मैंने आपको अभी बताया, अगर एओ की कोई गलती है और मैंने सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर रखी है, तो वो उस डिसअलाउंस के लिए रीओपन इसको रीजन रिकॉर्ड करके नहीं कर सकता 143.3 की मेरी, और उसके पास कोई नई इंफॉर्मेशन भी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड अवेलेबल। तो ये तो चेंज ऑफ ओपिनियन हो गया, और इसमें बहुत सी डिबेटेबल इशू है जो 14A पे क्या डिसअलाउ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और वो कोई कभी भी रीजन टू बिलीव नहीं बन सकता इस केस में। सेकंड इज राहुल खुराना जी का है। सर, इसमें बेसिक क्वेश्चन इज challenging whether not passing a speaking order, accepting or rejecting the assessee's objections to reopening of the assessment. This is what I say, the AO should do it, and earlier there are so many judgments जिसमें उन्होंने कहा रीजन नहीं दिए, या रीजन का आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल करे उसको प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर से आपने नहीं उसको डिस्पोज ऑफ करा। लेकिन अब रिसेंटली सारी कोर्ट्स जो हैं वो उसको एओ के पास दोबारा रिमांड बैक कर देती हैं कि ये आप इसको ऑब्जेक्शन दोबारा फाइल कर लीजिए, वो जवाब दे दे। लेकिन ये जरूरी तौर पे ये हमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि मैंने जो ऑब्जेक्शन फाइल करे थे उसको इसने प्रॉपरली डील नहीं करा है। सो इट इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, और चैलेंज करते हुए जब आप उसको ये ग्राउंड जरूर लेनी चाहिए। सर, as far as my memory, जजमेंट जिसमें उन्होंने इसको असेसमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर करा है। Yeah, right, sir. But there are a few judgments by Delhi High Court on this issue, where they have kind of diluted GK and Driveshaft to say that having given reason for reopening, not having addressed separately to the assessee, they Yes. still considered the assessment. This is what I say कि उन्होंने यही कह दिया कि अब वो अब उसको सेट असाइड कर देते हैं, रिमांड बैक कर देते हैं कि इसके जो रीजन है वो आप दोबारा से इसको डील करो। क्वेश्चन है सीए अरविंदर सिंह जी का। राइट जी सर, ये सर्च एंड सीजर रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको भी बता के चुका हूं कि वो अगर एओ के पास किसी थर्ड जुरिस्डिक्शनल एओ के पास किसी थर्ड पार्टी से जिसके सर्च हुई है वहां का डीडीआईटी या एओ को इंफॉर्मेशन भेजता है एंड ही सेटिस्फाइड दैट दिस बिलोंग्स टू ए, तो ए के केस में एओ को 153C करना चाहिए, ना कि 148 करना चाहिए। ये मैं अभी आपको इसमें डिस्कशन में मैंने बताया इस इशू को। चेंज ऑफ ओपिनियन पे तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा इसमें इनको बता दिया है चेंज ऑफ ओपिनियन क्या होता है। तो ये भी मैंने बता दिया कि जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उनके पास है या एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड, उसके अलावा अगर कोई नहीं है, नई इंफॉर्मेशन नहीं है,
या उसके पास कोई ऐसा नया रीजन नहीं है, तो वो चेंज ऑफ ओपिनियन ही माना जाएगा, उसके बेस पे 148 नहीं हो सकता। एक उनका सवाल है कि उन्होंने कहा कि मैंने ओरिजिनल असेसमेंट 143(3) की थी, उसमें मैंने सारे पेपर दे दिए थे, और उसके बाद ओरिजिनल असेसमेंट में उसने सारे एक्सेप्ट कर लिए थे। उसके बाद उसने ओरिजिनल असेसमेंट जो जुरिस्डिक्शन थी उसमें उसने कोई उसको जो भी वेरीफाई करने के बाद में उन्होंने उसी इशू पे मुझे Sir, I think this is question of revisiting the evidence by the AO which is on the file. हाँ वो तो वही है सर ये एनडीटी जो आपने जजमेंट की बात ये मैंने बता दिया। ऑब्जेक्शन वाला तो ऑब्जेक्शन तो वो नॉर्मली पहले तो इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देती थी कोर्ट्स, अब वो दोबारा से कह देते हैं कि इसको कर लो। इवन चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल भी ऐसे ही कर रहा है। विवाद अच्छा, ये विवाद से विश्वास। सर वैसे तो परीक्षित जी भी हैं ऑन कॉल सर, नहीं इसमें हाँ जी बताओ, एड्रेस कर ही सकते हैं। परीक्षित जी एक विवाद से Nikhil ji, I have just seen that query. After I think Mr. Singla can skip this query, and when after these I'll take up any query related to it. ओके सर। ये रीजन रिकॉर्डेड आगे सुनील कुमार मुखी जी का है। एंड इन सेकंड ऑब्जेक्शन फाइल्ड अगेंस्ट रीजन, नहीं पहले तो है कि रीजन रिकॉर्ड ही नहीं, रीजन अगर आपको नहीं दिए तो आपको तो ये प्ली लेनी चाहिए कि रीजन उसने रिकॉर्ड ही नहीं करे। लेट हिम प्रूव के मैंने रीजन रिकॉर्ड करे थे। अगर उसने नहीं दिए हैं आपकी डिमांड करने के बाद, इसमें बड़ा क्लियर है कि अगर आप रिटर्न भरने के बाद रीजंस मांगते हो तो एओ की ड्यूटी है आपको देना। अगर नहीं देते, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट इज देयर, कि अगर आपने रीजन नहीं दिए तो इसका मतलब है आपने रीजन रिकॉर्ड नहीं करे, तो ओनस विल शिफ्ट ऑन द असेसिंग ऑफिसर टू प्रूव दैट उसने रीजन रिकॉर्ड करे थे। लेकिन अगर मैंने नहीं मांगे ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग, तो बाद में आईटीएटी में जाके अगर मैं कहूँ मुझे रीजन दिलवा दो, तो वो मेरी अपील ये नहीं मानते कि रीजन आपको वही मांगने चाहिए थे, बाद में मेरे एंटरटेन नहीं करेंगे। सो अगर मैंने मांगे हैं और उन्होंने नहीं दिए तो आपको यही प्ली लेनी चाहिए कि रीजन रिकॉर्ड नहीं करे। सेकेंड इज इसमें सेकंड पार्ट भी था निखिल जी, एक बार ऊपर करना ये स्क्रॉल करके। हाँ सेकंड पार्ट था सर, आई थिंक वही है जो रीजन उसने डिस्पोज ऑफ नहीं करे, इस पे तो हो चुका है। हाँ जी, मेल के विनय जैन जी, मेल के थ्रू नोटिस जो है वो वैलिड है जी। अब तो एक्ट में चेंज आ गई है, इलेक्ट्रॉनिकली एनी नोटिस इज वैलिड। सतवीर जी ये तो बड़ा क्लियर है, मैंने कहा टेंजिबल मटेरियल तो बहुत जरूरी है जी, उसके बिना रीओपन नहीं हो सकता। हाँ, रीजन टू बिलीव के अलावा भी वो जब वंस योर केस इज लीगली रीओपन और उसने 148 का नोटिस आपको प्रॉपर दिया है, रीजन प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, तो वो उसके बाद कोई भी ड्यूरिंग दैट असेसमेंट कोई भी अगर आपकी सब्सिक्वेंट उसको कोई इंफॉर्मेशन, उसमें कोई रिकॉर्ड में कोई गलती मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो उसको एडिशन कर सकता है। सर इस पॉइंट पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिल्ली हाई कोर्ट की और बॉम्बे की ना जजमेंट होती थी, जेट एयरवेज और रैनबैक्सी। हाँ बिल्कुल है। आज के डेट में दिल्ली हाई कोर्ट ने जकोटिया प्लास्टिक एक केस था सर, जेट एयरवेज तो उन्होंने बाद में जो आजकल की जजमेंट है, उस दिन सहगल साहब ने भी जेट एयरवेज की बात करी थी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आजकल जो कोर्ट्स हैं सर, हमारी जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट ही ऑपोजिट ओपिनियन पे है। जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट के दो डिसीजन है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि चाहे आपके रीजन वो जो रीजन रिकॉर्ड हुए थे उस पर कोई एडिशन हुई या नहीं हुई, बट अदर एडिशन हो जाए। बट मेरा अपना ओपिनियन है कि वर्ड एंड यूज होने की वजह से ये जब तक अपेक्स कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करती, ये डिबेटेबल ही रहेगा। बिल्कुल सर, एक सतबीर जी का अगर डेथ हो जाती है तो सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे वैसे भेजना चाहिए
बट देयर आर जजमेंट कि अगर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी नोटिस सर्व हो गया है तो वो उसको मान लेते। हाँ वो तो आप, ये तो आपका राइट है जी, रीजन टू बिलीव, और राइट क्या आपको मांगने ही चाहिए और इसको चैलेंज भी करना चाहिए, इसके ऑब्जेक्शन फाइल करने चाहिए। हाँ जी, रीजन टू बिलीव के बियॉन्ड जा सकता है जी, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंबोज जी, इफ यू डिड नॉट पुट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग बट द अप्रूविंग रिपोर्ट्स डेट बाय। देखिए दोनों को, एओ को भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए और इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए और अप्रूविंग अथॉरिटी को भी चाहिए। अब रीजन उसने रिकॉर्ड करे, उस पर डेट नहीं डाली, नो डाउट अप्रूविंग अथॉरिटी ने करा, बट अगर आपको रीजन टू बिलीव में कोई और डिफेक्ट भी मिलता है तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड के देखिए जी इसने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड कराई नहीं, मैकेनिकल वे में इसने रिकॉर्ड कर दी है, इस पर डेट भी नहीं डाली। सो एक कोर्ट को आप कह सकते हो जब भी अपील में हो कि इसने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। सेंड द प्रॉपर प्रोसीजर टू बी डेल्ट विद असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। अब वंस रीअसेसमेंट स्टार्ट्स वैलिडली और लीगली तो उसके बाद तो फिर असेसमेंट वाला ही प्रोसीजर है, ऑर्डिनरी असेसमेंट वाला, वही नोटिस अंडर सेक्शन 142 143 टू जो है इशू होके उसी तरीके से। हाँ जी, ज्यूरिसडिक्शन का इशू इसमें रह गया जी मेरे से। ज्यूरिसडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताना भूल गया बीच में, कि सिर्फ ज्यूरिसडिक्शनल एओ ही इशू कर सकता है 148। अगर किसी के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और उसने रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करके आपको नोटिस इशू कर दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद जब भी वो सपोज वो ट्रांसफर भी कर देता है मेरे ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास, तो उसको दोबारा से रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करने चाहिए और उसके बाद उसको अप्रूवल लेके उसका नोटिस दोबारा से काटना चाहिए। टाइम है चाहे नहीं है, ये असेसी की गलती नहीं है। अगर उसमें टाइम बारिंग भी है तो डिपार्टमेंट देखे इसको, बट जो नॉन ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है उसका, उसमें ये भी है कि जिस एओ ने रीजन रिकॉर्ड करे हैं वो ही उसको ऑब्जेक्शंस को डील करे, तो नॉन ज्यूरिसडिक्शनल तो ये काम कर ही नहीं सकता। सो ज्यूरिसडिक्शन तो बड़ा जरूरी है कि मेरा ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर ही, कई बार क्या होता है एआईआर की इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें बैंक की डिटेल दे देते हैं पार्टी, जिसमें ना पैन होता है ना कोई एड्रेस होता है, एड्रेस उसका पुराना हो गया सपोज, तो एओ वहां पे 148 भेज देता है, रीजन रिकॉर्ड करे वहां पे 148 चला गया। अब ये डिस्प्यूट रहता है, ये कहता है जी मेरे पास तो कोई एड्रेस ही नहीं था, मेरे पास कोई पैन नहीं था, इसको आप चैलेंज करिए कि मुझे तो मिला ही नहीं, गलत एड्रेस पे गलत आपने भेज दिया तो मैं इसमें क्या करूं। लेकिन इसमें डिबेटेबल इशू है, वो कहेगा जी जो मेरे पास एड्रेस है मैंने वहां भेज दिया, अब मैं तो और कहीं भेज नहीं सकता था, मुझे तो इसका पैन नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसमें ये डिबेटेबल तो रहेगा, बट आप इसको चैलेंज करिए। सर इसमें कैलकाटा हाईकोर्ट जजमेंट है स्मृति केडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कैलकाटा हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली इशू डील करा हुआ है ज्यूरिसडिक्शनल एओ वाला। एंड हमारी आईटीएटी में भी आई थिंक दिस हैज बीन आर्ग्यूड, बट आई कांट रिकॉल एनी डिसीजंस इफ परीक्षित जी और सहगल साहब सर इफ नहीं है, हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के है, कर्नल पर लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह का है, पंजाब हरियाणा का है। तो इसमें वो उन्होंने यही कहा है नॉन ज्यूरिसडिक्शनल एओ कैन नॉट फॉर्म रीजन टू बिलीव, बड़ा क्लियर उन्होंने कहा। और भी बहुत सी जजमेंट है इसमें। राइट सर, राइट सर। एक क्वेरी इफ यू मे अलाउ मी टू रेज अ क्वेरी। हाँ जी बोलिए। Sir, in a situation where AO has validly issued reasons for reopening have been approved by the approving authority. जी. And the reasons copy has been sent to the SSC. Now what happened, the AO has not issued reopening notice under 148 but has shared the reason. Subsequently not issued a notice under section 148. Not issued a notice but served the reason for reopening that has been approved by the authority. नहीं 148 नोटिस तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर नोटिस नहीं इशू हुआ तो नहीं हो सकती, वो तो टाइम बारिंग होगी। Sir, the follow up to that is 1 year later they issue the same reasons and the reopening notice as well. It was within time.
नहीं, वो तो कर सकता है अगर उसके पास टाइम पीरियड है। 148 उसने सपोज एक सब्जेक्ट पे इशू करा है तो दूसरे पे भी कर सकता है, उसकी पेंडेंसी में कोई बार नहीं है। लेकिन ये अगर उसका पहले उसने नहीं इशू करा और वो विद इन द लिमिटेशन पीरियड अभी उसके पास पावर है तो दोबारा करने पे कोई बार नहीं है। इवन देयर आर केसेस जहां उन्होंने कहा है कि अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग है, सपोज कहीं एओ से कई बार 153A और 153C का नोटिस गलती से इशू हो जाता है तो वो विड्रॉ करके 148 बाद में कर देता है। सर स्पेसिफिकली क्वेश्चन बीइंग सेम ही चीज पे जो वो पिछली बार करना ही भूल गए असेसमेंट, हाँ, तो अगर लिमिटेशन पीरियड में है तो कर सकता है। भाई वो नॉन एस्ट हो गया ना, जब उसने रीजन रिकॉर्ड करके आपको, कोई ऐसा एक्ट में नहीं है कि रीजन रिकॉर्ड करने के इतनी देर में नोटिस इशू करना है। राइट। ये है कि इस पीरियड से पहले 6 साल के अंदर अंदर आपको सपोज करना है। तो टाइम लिमिट इज के असेसमेंट ईयर के 6 साल के अंदर करना है। रीजन रिकॉर्ड करके उसने नोटिस करा नहीं करा वो उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। सर लाइव हमारी पार्टिसिपेंट्स में एक एडवोकेट के सिंगला जी हैं पटियाला से। सर यू आर अनम्यूटेड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, माई सेल्फ एडवोकेट के सिंगला फ्रॉम पटियाला। जी जी, गुड आफ्टरनून सिंगला जी। Thank you, sir. I have two queries, sir. One is, in one case, the learned assessing officer issued the reasons recorded for the issue of notice under section 148. I asked for the copy of the approval granted by the principal commissioner, but that was denied. Later on, I inspected the file and it was only written fit case by the principal commissioner. It was written fit case only. Whether that is a valid approval? नहीं, वो तो है ही नहीं। वो तो मैं अभी कह चुका हूं, उसमें लिखा है कमिश्नर इज सेटिस्फाइड। उसकी सेटिस्फेक्शन होनी जरूरी है फ्रॉम द रिकॉर्ड। और मेरे ओपिनियन में तो ये कभी किसी ने पता नहीं चैलेंज नहीं किया या किसी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, उसको सेटिस्फेक्शन से पहले सारा रिकॉर्ड देखना चाहिए और उसको एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए। इस पे तो बड़ी जजमेंट है, उसने लिख दिया यस आई एम सेटिस्फाइड, तो वो मैकेनिकल है, परमिशन उसमें अलाउ नहीं करते हो। लेकिन एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट कि अगर जेसीआईटी की पावर है तो जेसीआईटी ही करेगा, प्रिंसिपल सीआईटी की पावर है तो प्रिंसिपल सीआईटी ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जेसीआईटी की पावर और आपने प्रिंसिपल सीआईटी से परमिशन ले ली वो इनवैलिड हो जाएगी। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि परमिशन किससे ली है, अप्रूवल किससे लिया उसने। Great, sir. Sir, there was a query in the chat by Surinder Babbar ji. Sir, we have unmuted you. We were unable to type the query on the screen. So, if you could orally ask your question. जी जी बताइए। जी सिंगला जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। Sir, my query is that during survey proceedings of a party, the party says that I am only an entry provider and I have issued the invoices which are bogus. No doubt I have received the payment through banking channel, but I returned the money after deducting my commission. Though my case has been reopened by the AO on the basis of this information. During reassessment proceedings, I obtained an affidavit from that person in which he states that all these purchases are genuine and all the payments are genuine. Even then, the AO has made the addition by saying that these are not verifiable. बब्बर जी, इसमें दो पार्ट है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहली असेसमेंट 143(3) में हुई थी ओरिजिनल। यस। अच्छा चलिए, अब आपके दो पार्ट हो गए। वन इज रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट, सेकंड इज एडिशन ड्यूरिंग द रीअसेसमेंट। सो जहां तक तो रीओपनिंग का सवाल है, अगर आपने उन पार्टियों की सारे परचेज के बिल, सारी इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन थी, परचेज आई थी, आपके क्रेडिटर थे वो? यस, आपके क्रेडिटर थे ना?
Yes. तो परचेज और क्रेडिटर की सारी अगर आपने डिटेल दी थी और उसने मांगी थी ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट, तो उसको उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ेगा प्रॉपर। ये नहीं कि वहां से इंफॉर्मेशन आई बोगस और उसने रीओपन कर दिया। पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए कि कैसे बोगस है, उसने क्या देखा, क्या उसने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई करना चाहिए। ये तो रीजन टू बिलीव। जो एफिडेविट आपने बाद में लिया है उसका रीजन टू बिलीव से कोई लिंक नहीं। रीजन टू बिलीव से तो जो आपने रीजन रिकॉर्ड करने से पहले पेपर दिए हैं सिर्फ लिंक्ड है। हाँ, एफिडेविट से आप बाद की एडिशन को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन रीजन टू बिलीव अगर उसने प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके किया है बाय स्क्रूटनाइजिंग द रिकॉर्ड अवेलेबल विद हिम ऑफ द ओरिजिनल असेसमेंट, तो रीजन टू बिलीव फिर तो ठीक है। Okay. Sir, thank you very much for your patient hearing to all our participants and your. सहगल साहब है यार हमारे गुरुजी, जरा उनसे पूछ लो कुछ मैंने गलत किया, कुछ कह दिया हो तो। सहगल साहब, you kindly add something. नहीं, मैं देखो 2-3 चीजें जो आपने बिल्कुल ठीक कही हैं। एक तो ये रीजन टू बिलीव इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए ये लीडिंग जो जजमेंट एक सिंगल मेंबर की है अमृतसर बेंच की, अमरीक सिंह की, उसके अंदर वो जैसे AIR इंफॉर्मेशन आई, AIR इंफॉर्मेशन में उसने लिख दिया भी एसएससी ने 5 लाख रुपया बैंक में जमा उसने करवाया है और उसका जो है ही इज नॉट बीइंग असेस्ड टू टैक्स। AO ने सिर्फ वही लिख के दैट 5 लाख रुपया जमा कराया है एंड इज नॉट बीइंग बेसिकली असेस्ड टू टैक्स। ही इशूड ए नोटिस अंडर सेक्शन 148 which was held to be wrong because merely that a person is not filing the tax return, उसका ये मतलब नहीं है कि 5 लाख रुपए उसको कोई लोन भी आ सकता है, गिफ्ट भी आ सकता है by any other mode. Second thing which I wanted to tell you, you had already dealt with that, is that with regard to the one very important fact, ये GK ड्राइव शाफ्ट की जो जजमेंट है इसके ऊपर अभी लेटेस्ट एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है 401 ITR पेज 427। उसके अंदर उन्होंने कहा है भी अगर ये कोई भी असेसिंग ऑफिसर if he does not follow the guideline issued by the GK and drive shaft, then they have felt that the assessment would be quashed and AO will not get a second chance to issue a notice under section 148. So I think, and then the more important is our Chandigarh bench, a very old judgment but very well written. That judgment is in the case of Shiva Exports. It is dated 8/10/2008 and that is with regard to the ITR number 7 and 8 of 2008. इसके अंदर वो जो राजेश जवेरी की जजमेंट उन दिनों में लेटेस्ट आई थी उसके ऊपर ATIA का इशू था। AO ने जैसे ये आपने बात कही ना टू लो रेट के बारे में, उसने कह दिया ATI के इसके जो बिजली के खर्चे कम है, एम्प्लॉइज कम है, 20 ज्यादा नहीं है। ये ITAT की जजमेंट आगे जाके नहीं गया इसके अंदर आफ्टर दिस ITAT डिसीजन। राजेश जवेरी में उस दिनों लेटेस्ट आई थी, देयर वाज अ लॉट एट ह्यू एंड क्राई, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट जजमेंट ऑफ द चंडीगढ़ बेंच, जहां पर उन्होंने कहा है कि इट इज मेयरली अ चेंज ऑफ ओपिनियन। अगर ये राजेश जवेरी की जजमेंट आ भी गई और पहली जो असेसमेंट थी दैट वाज मेड अंडर सेक्शन 143(1), दे सेड रीजन टू बिलीव हैज टू बी देयर। वो रीजन टू बिलीव जो है उसके अंदर राजेश जवेरी में बड़ा साफ लिखा है, रीजन टू बिलीव होना इट्स अ मस्ट। That is, I think you have dealt with the topic very nicely, Singla ji. सहगल साहब, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा। सहगल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो उन्होंने लिखा टू लो रेट का क्या मतलब, कितना कम हो ये रेट? ये तो एक जर्नल सी, इट इज जस्ट ए वेरी वेग। जैसे ये हमारे अपनी कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने परमजीत के केस में बोला है भी ये जो है वेग रीजन है। टू लो तो एनीबॉडी कैन, टू लो का क्या क्राइटेरिया होगा, कितना लो होना चाहिए? नहीं, आई थिंक दैट 148 तो टू लो रेट, इनकम टैक्स नहीं दे रहा या वो नहीं दे रहा,
मेरे पास अगर मेरी इनकम है, आई मे नॉट बी लायबल टू टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन 80 की जो मेरी छूट के ऊपर हैं। तो इसलिए ये तो रीजंस, हमें तो सब लोगों को ये देखना चाहिए जब भी 148 का आए। मैं तो सबसे पहले असेसी को या उसके काउंसिल को ये कहता हूँ, सबसे पहले इसकी सर्विस देखो, नाम देखो। Secondly, the third and the most important, reason to believe. Get a copy of the notice, a copy of the reasons which have been recorded. एक और, ये Ms. Nikhil had raised a very pertinent query. भी अगर non-jurisdictional AO अगर notice देता है, उसके अंदर there is a latest judgment of the Chandigarh bench of the ITAT in the case of Manjeet Singh. It is a reported case. 4 महीने पहले ही उसकी judgment है। भी AO जिसके पास नहीं थी jurisdiction, he had issued a notice, and later on we had challenged it under section 148, and that very assessment had been quashed. Thank you, Singla ji, for your nice talk, sir. Thank you so much. सहगल साहब, एक मेरा जो एनडीटीवी की जजमेंट में मैंने पढ़ा, उन्होंने 147 की प्रोविजो नहीं लिखी, किस प्रोविजो में वो नोटिस काट रहा है। तो सभी में वो प्रोविजो तो लिखते नहीं 1, 2, 3, तो सभी में चैलेंज करना चाहिए। फिर ये जो एनडीटीवी की जजमेंट है ना जी, एनडीटीवी की जजमेंट है में पहले इशू के ऊपर तो उन्होंने कह दिया भी ऑन द बेसिस ऑफ लेटर, अगर मेरा मान लो केस चल रहा है 16-17 का और 15-16 में वो इशू के ऊपर मेरी उन्होंने असेसमेंट कर दी, बट they said on the basis of AO forming an opinion in the next year, they said that that very case can be reopened. But on the second issue is that जहां पर 4 साल से ऊपर उसके अंदर हो चुके हैं, उसके अंदर जब तक कोई मटेरियल नहीं है, then the reopening is not justified. तो ये जो एनडीटीवी की जजमेंट है, rather it is more in the favor of the assessee, but it has to be read in each, हर एक केस के फैक्ट्स के मुताबिक उसके अंदर क्या उसमें लॉजिक था, क्या उसके अंदर फैक्ट्स थे, विज़ जो केस इन हैंड हमारे पास है उसके अंदर क्या फैक्ट्स है। इट कैन बी अप्लाइड इन बोथ वेज, बिकॉज पहले क्वेश्चन तो उन्होंने रेवेन्यू के फेवर में दिया, फिर जो बी और सी क्वेश्चन था उसके अंदर वो उन्होंने असेसी की फेवर में दिया। तो इट विल बेसिकली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, व्हाट काइंड ऑफ रीजंस आर रिकॉर्डेड by the AO, only then that will have to be taken into consideration. उन्होंने नोटिस को भी कंसीडर किया है कि उसमें प्रोविजो नहीं लिखी तो 16 साल का आप ऑप्ट नहीं कर सकते। 16 वो उन्होंने कह दिया भी अगर 16, क्योंकि उसके अंदर वो जो था 16 साल का था, उसके अंदर टाइम था इशू करने का, बिकॉज उसकी फॉरेन की कोई थी, फॉरेन की एंट्री उसमें उनकी यस उसकी तरह से, बट उसके अंदर ये एओ को ये नहीं देते भी आप उसको कर दो, मतलब ब्लाइंडली उसको कोई परमिशन नहीं दी उसको उन्होंने। अगर परमिशन नहीं दी, उन्होंने कहा आपने ये प्रोविजो लिखा ही नहीं नोटिस में कि इस प्रोविजो में मैं नोटिस का प्रोविजो में नोटिस का कर रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स उन्होंने ये कहा उसमें, तो इसका मतलब हर एक में उसको प्रोविजन लिखनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए। अब वो सपोजिंग उसने उसको ज्यादा वो वाला जो अगर है रेलेवेंट सेक्शन नहीं लिखा, अगर मान लो, पर उसने अदरवाइज उसमें लिख दिया सारे फैक्ट्स, उसने लैंग्वेज वो लिख दी, उससे अगर ये हमें मालूम पड़ता है भाई ये he was aiming at that very उसके अंदर नोटिस तो स्टैंडर्ड है, नोटिस में तो स्टैंडर्ड नोटिस नहीं, रीजन ना, रीजन नहीं, वो कहते हैं नोटिस में नहीं आपने 147 की प्रोविजन लिखी। वो तो वो उसके अंदर लिखते हैं ना नीचे, जैसे भी ये बियॉन्ड 4 years वगैरह जो लिखा हुआ है, तो it is yet to be kind of tested upon. It is a very recent judgment. Let us hope we are all able to do well. एक ये डेट नहीं डालते कभी रीजन जब रिकॉर्ड करते हैं, वो उसके ऊपर 2 जो केसेस हमारी फेवर में हैं। हाँ पता है जी, मुझे फेवर में है, नहीं डालते वो दैट इज अ वेरी वैलिड एप्लीकेशन ऑफ माइंड है जी, वो तो बड़ा क्लियर। बिल्कुल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, 101% नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्योंकि बहुत से केसेस में मैंने देखा डेट वो डालते ही नहीं, वो इसलिए ओपन रखते हैं कि कमिश्नर जब परमिशन देगा तो बीच में टाइम गैप डेट। बिल्कुल ठीक। Sir, I think that was a very useful conversational exchange that helps all us present here.
At this point, I would request CA Prashant Aggarwal to kindly take over. There was one query on Vivad Se Vishwas, if you could address that and also present the remarks for today's meeting, please. Thank you, Nikhil. If you can just that slide again, wherein that query was there regarding that Vivad Se Vishwas scheme. Yeah, I think by Srimati Asha. I had a query relating to Vivad Se Vishwas scheme which was taken up yesterday. Now her query is, while filing form number 1 under the scheme, there is a column in part A relating to eligibility. My case is of penalty under 271(1)(c). If I opt not to pay tax on reduction of losses or depreciation or MAT credit, I am required to fill Schedule D, which seeks information on the subject of paying tax on reduction of loss or depreciation of MAT credit, which is not my case. If I fill Schedule A, which is applicable in my case, I become ineligible. How to overcome this anomaly? I think there is some error that you are committing while filling this form. It's you are not to fill Schedule D because it is a penalty matter. Not Schedule A. There is the third part wherein penalty, interest, and fees are mentioned. So you are to fill that very schedule only, and then the tax area schedule. So no part A wherein the liability of quantum tax arrears are to be calculated. So that form you have to leave blank. And also the form D regarding reduction of losses and depreciation and MAT credit, that is also required to be left blank. I hope that query that you have raised is suitably answered. And if you feel that something more is required, you can still raise your hand and I can answer that. Else I'll proceed. Nikhil, can you show that raise hand by anyone else regarding this Vivad scheme issue? Sir, there are 2 raised hands. I'm not sure if it is regarding Vivad Se Vishwas. We'll recognize Harry Rikhi ji. Hello. Yes, sir, we can hear. हाँ जी परीक्षा जी, ये जो क्वेरी थी ना अभी इस कि ये जो फर्स्ट जो फॉर्म का पार्ट ए है, इसमें ये जो एक क्वेश्चन है वो ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वाला, ऐसा ये मैंने भी जब फॉर्म भरने शुरू किए थे लॉकडाउन से पहले विवाद से विश्वास के, तो एक मैं इसको आंसर पहला जो ये ना क्वेश्चन में कोई एनॉमली है, इसमें वो नेगेटिव क्वेश्चन है, बट उसका आंसर अगर हम यस और नो में देते हैं तो वो मैच नहीं कर रहा, वो शेड्यूल डी जो है उसके साथ कुछ नहीं। I totally agree to your view because I totally agree that there is some anomaly in the form itself, and the board is also seized of that matter. That has been advised to the board by AIFTP regarding this issue, and they are seized of the matter, and they are in the process of changing this very portion because yes or no, there is an anomaly. Only if you put no, then it proceeds to the relevant portion. In yes, it directly takes you to Schedule D. So there is some anomaly in that question itself, not in the yes or no answer. There is a question में anomaly. There is an anomaly in that first page, front page of that form itself. That is already brought in the notice. That has already been brought to the notice of the board, and I have told that in the last seminar that conducted by Mr. Girish Ahuja, he said that has already been addressed, and the board is in the process of changing that very portion of the question in the form. Okay. So we should wait for that part to be corrected before 5, because since yesterday, the ITOs have started calling us for Vivad Se Vishwas scheme again. I think since the 3rd May is coming for the lockdown to get opened. So the ITOs have started calling us since yesterday to again with this target of Vivad Se Vishwas. So I think we should wait for that form to be corrected first, or no, I think what I can suggest is that you can still continue filling the form and save as draft, and they will just change the question, and I don't know whether by that changing the question your draft would automatically be deleted from the portal, the draft that you had saved. But I think you can still continue carrying on the draft work that can be filled in the form. Or we can just answer in such a manner that Schedule D doesn't open up. Relevant schedule that's open up, not the Schedule D that you want to leave. Yes. So thank you so much. Thank you.